Good morning, students. Today we have to again revision of chapter 1 in computer language chapter. So we have to explain today third generation language. So students, ready to understand this topic? Yes. Third generation language. Third generation language we have to identify with the another name, that is high level language. High level language, in short term HLL. So the main disadvantage of machine language and assembly language, you have to know na, assembly language is a first generation language and machine language is a first generation language and assembly is a second generation language, and we have to discuss on third generation language. So the main disadvantage of machine language and assembly language is that they are machine dependent. Both languages, means machine language as well as assembly language, both are dependent in machine. So in high level language, in short term I can say that HLL, in high level language, programming codes written in this language can be used on the another computer. Listen students, in this third generation language, now programmer can set of instruction code written in this language. Now this language codes we have to use in another computers. यानी इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर जब कोई भी प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बनाता है, कोड कन्वर्ट करता है अपनी मशीन के लिए, तो वो कोड दूसरे मशीन के अंदर भी एग्जीक्यूट, यानी दूसरी मशीन के अंदर भी वो प्रोग्राम चलते हैं. दिस लैंग्वेज यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स एंड सिंबल्स विच आर इजी टू लर्न एंड नीड टू लेस टाइम टू राइट. हियर simple English words and symbols. Here students, third generation language is very easily as compared between machine language as well as assembly language, because the reason is that in third generation language written in simple English words as well as used symbols, that type of symbols that we have to habitual for our work. That's the reason is that they are easy to learn and our program can be written in very simple methodology, and after this our program can be executed in less of time. यानी बच्चों, इस प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि एक तो ये सिंपल इंग्लिश भाषा यानी सिंपल इंग्लिश शब्दों को यूज करके बनाई गई. दूसरा, इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स यानी कुछ इस प्रकार के चिन्हों को यूज किया गया जिनके के माध्यम से हमारा प्रोग्राम बहुत इजी गोइंग यानी बहुत आसानी से कंप्यूटर मशीन पे हम लोग उसको चला सकते हैं. हमें याद करने की उसको जरूरत नहीं होती. नाउ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज टू जनरेट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज टू जनरेट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. यानी ये वो समय था तीसरे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करने लगे थे. हमारी काम करने की गुणवत्ता यानी हम लोग जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी इन प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारा नई मेथोडोलॉजी यानी हमारे नए मेथड्स को हम लोगों ने जनरेट करना प्रारंभ कर दिया था. नाउ HLL, डोंट कंफ्यूज इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, मींस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू क्रिएट द प्रोग्राम व्हिच आर मशीन इंडिपेंडेंट. इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वी कैन से that the instructions, that the code, that the method developed to create the programs, means programs which are machine independent. No dependent, is machine
independent. That is example Java, Pascal, C++. That is the best example of machine languages that we can use in third generation language. बच्चों आपको इसके अंदर कुछ भी लर्न करने की या समझने का इतना डेप्थ में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है. बस यू हैव टू अंडरस्टूड दैट दिस मशीन इज machine independent. High level language is a machine independent language, and second thing is that use simple English words and symbols which are easy to learn, carry and need to less time to write. बस आप लोगों को इसमें सिर्फ इतना ही याद करना है, इतना ही समझना है, इससे ज्यादा आपको इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. Now, students, we have to discuss after third generation language. We have to discuss disadvantages or advantages. But first of all, we have to disadvantages. First of all, we have to see disadvantages. After, we have to discuss advantages. Okay. Now, the first point is here. A translator is required to convert high-level language into machine language. Yes. Main disadvantages of third generation language is here. A translator is required. Here, a translator is required to convert high-level language into machine language. यानी हम लोग इसके अंदर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की सबसे बड़ी जो कमी है या जो दोष है वो यही है कि हम लोग इसमें ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं. क्यों? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर. Second thing is that use of translators as sometimes we have to need translators add to executions of the program. कुछ जगह हमें या कुछ प्रोग्राम्स में हमें जब अपने प्रोग्राम्स का रिजल्ट का आउटपुट देखना होता है तो we have to need translators add at the time of execution in the program. जब हमें प्रोग्राम को चलाना होता है या उसके आउटपुट तक जब हमें पहुंचना होता है तो कई बार हमें ट्रांसलेटर्स ऐड की जरूरत पड़ती है. इट इज रिलेटेड फ्रॉम ट्रांसलेटर्स. So this is a big disadvantage in third generation language, means high level languages. And we have to discuss advantage. विशेषता. High level is a user friendly language. Now main thing is that, and the main function or main thing is that कि हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा फंक्शन इसलिए यहाँ ये यूज कर रहा हूँ कि इट इज ए यूजर फ्रेंडली. मीन्स हम लोग को इतने फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है ये लैंग्वेज. जैसे जब आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हायर क्लासेस में सीखोगे तो ये हमें इतने फंक्शंस हम लोग को इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है कि हम लोग इसको यूजर फ्रेंडली बोलते हैं. यानी जो प्रोग्रामर होता है वो इससे इतना हैबिचुअल हो जाता है कि उसको इतना लॉट ऑफ बर्डन लेने की जरूरत नहीं होती, उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. एंड सेकंड इज दैट हमने भी डिस्कशन किया था, इट इज ए मशीन इंडिपेंडेंट. ये आपको बस इसके अंदर लर्न करना है कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, next topic is compiler and interpreter. Compiler and interpreter. It is a very big topic which includes in chapter number 1. You have to understand or different between compiler and interpreter, because if you want to use computer science in future, means after complete your 10th board you have to adapt computer science subject, you have to need compiler and interpreter. Okay, so first of all we have to discuss compiler and then interpreter. Now a compiler is a software programmer. Yes, a compiler is a software program. A compiler is a software program or use technique. A compiler is a software program or technique which is used to convert a program written in high level language to
machine language. Student, compiler is a software program which is used to convert a program written in high level language to machine language. यानी बच्चों पहला पॉइंट ये है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर। यानी आप लोग उसको मीडिएटर और ट्रांसलेटर्स भी बोल सकते हो। नाउ सेकंड थिंग इज दैट इट कंपाइल्स द होल प्रोग्राम एट वंस। You have to remember this thing. It is very essential part of us. Compiler compiles the whole program at once on a single piece. Means compiler compiles the whole program at once. Third thing is that a list of errors is generated at the end of the program, which can be removed later. Means कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम्स को एक बार ही रीड करता है फ्रॉम अप स्टेज टू डाउन स्टेज। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ए लिस्ट ऑफ एरर्स, यानी जितनी भी उस प्रोग्राम में मिस्टेक्स हैं, ईच एंड एवरी एरर्स ही विल सॉर्ट आउट और फाइंड आउट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी जब प्रोग्राम्स को हम लोग के अंदर में ये एरर तब दिखाता है जब हमारा प्रोग्राम जनरेट होने के बाद में एग्जीक्यूटिव मोड पे जब पहुंचता है उसके बाद में हम लोगों को ये शो करता है। यानी एट द एंड ऑफ प्रोग्राम विच कैन बी रिमूव्ड लेटर। ये सबसे बड़ा इसका दोष है। यानी देखो इट कंपाइल्स द होल प्रोग्राम एट वंस, यानी पूरे प्रोग्राम को ये एक ही बार चेक आउट करता है, रीड आउट करता है, और रीड आउट करने के बाद में इसको जितनी भी गलतियां, जितनी भी मिस्टेक्स मिलती हैं उन सबको ये जनरेट करता है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी एग्जीक्यूशन के टाइम में ये एक साथ लोगों को दिखाता है। दैट इज कंपाइलर। ओके, सेम थिंग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आफ्टर इंटरप्रेटर you have to see, I have to draw a line arrow. Means an interpreter is a software program which is used to convert a program written in HLL, means high level language, to machine language. बच्चों जैसे कंपाइलर है ठीक उसी तरीके से इंटरप्रेटर भी है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो ए प्रोग्राम और इट इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर, इट इज ऑल्सो ए टेक्निक विच वी कैन यूज टू चेंज हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स और लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज। नाउ सेकंड थिंग इज दैट हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरप्रेटर प्रोसेस one line at a time. Please see this line here. As compared to compiler compiles the program at once, but here interpreter process one line at a time. He is used starting from A to Z, मीन्स ये A से लेकर के Z, यानी एक लाइन के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स को रीड करता चलेगा। यानी जहां इसको प्रोग्राम में मिस्टेक मिलेगी लाइन बाय लाइन, वहां वो आपको एरर्स को शो करता है। इट स्टॉप्स वेयर एन एरर occurs. Here it stops where an error is found or occurs, which is to be removed immediately. यानी बच्चों ये आपको लाइन टू लाइन, ये फर्स्ट लाइन पढ़े इसने क्लियर है तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नाउ फर्स्ट लाइन इज क्लियर, गो थ्रू सेकंड लाइन। अगर दूसरी लाइन सही है तो गो थ्रू थ्री लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पे आएगा। अगर थर्ड लाइन में इसको कुछ एरर फाइंड आउट होता है तो ये इमीडिएटली यूजर्स को बोलता है कि आप इस मिस्टेक को यहां से क्लियर करें। इट इज रिमूव्ड इमीडिएटली, विच इज टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, विच मीन्स जहां आपको एरर्स मिले इसको रिमूव कीजिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, नहीं दैट टाइम जहां इसने एरर्स को फाइंड आउट किया है, जहां इसने एरर को पकड़ा है, यूजर उसको ठीक करता है और अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इट इज अ मेन difference between compiler and interpreter. Both of them are program, technique or software. It is compiled at one time. It is compiling or it is interpreter process one line at a time. It is removed later, means generated at the end of time. When error generated at the end of time, we will remove errors. But in interpreter, it stops where an error occurs
which to be removed immediately. So I think interpreter is best as compared to compiler. It is my choice. Now students, we have to discuss on fourth generation language. Yes, what is fourth generation language? Now first thing is that it is a non-procedural language built specific program. Means in fourth generation language we have to use for a specific unique and identifier language. यानी हम लोग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्रोसेसर लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेजेस के अंदर इसको यूज करते हैं या वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं जिनके अंदर हम लोग कोई निश्चित कार्य करते हैं. नाउ सेकंड थिंग इज दैट दे आर एक्सेसिबल टू पीपल विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एज ए प्रोग्रामर. ये मुझे सबसे अच्छा, इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. मुझे सबसे अच्छा लैंग्वेज का ये लगता है कि वी डोंट नीड टू कंपेयर एज ए प्रोग्राम. हमें अगर प्रोग्रामर की तरह हम लोग कंपेयर करें तो एक सिंपल पर्सन भी जिसको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, विदाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए सिंपल पर्सन कैन हैंडल फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. इतना मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर. थर्ड थिंग इज दैट मल्टीपल ऑपरेशन कॉमन मीन्स मल्टीपल common operation can be performed by writing a single command means database command. इसके अंदर एक कमांड के अंदर यानी एक लाइन के इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस को हैंडल कर लेते हैं जो कि हम लोग डाटाबेस प्रोग्राम्स के अंदर करते हैं. यहां मैंने कमांड इसलिए लिखा है, सॉरी कॉमन इसलिए लिखा है कि इसमें लिखा है ना मल्टीपल ऑपरेशंस. नाउ वी हैव टू हैंडल मल्टीपल common operation or operations means common can be performed by writing a single command. That times we have to write a single command. Multiple operation can be handled in a term of single method. Now the example of SQL, standard query language, Nomad and Focus, the best languages in fourth generation languages. It is a main example of fourth generation languages. Advantages of fourth generation language: system development is faster. Now fourth generation language we have to know about this. System development is faster. यानी whole system development processes is compared to first generation, second generation and third generation. Now whole process development is faster. Second thing is that it has simplified the programming process. यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग के जो प्रोसेस हैं वो एकदम सिंपल हो गए थे, एकदम आसानी से. तभी तो मैंने कहा है कि नो नीड टू ट्रेनिंग एज कंपेयर टू ए प्रोग्रामर. यानी एक प्रोग्रामर की हमें की तरह हम लोगों को इसमें इतना ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इट हैज सिंप्लीफाइड द प्रोग्रामिंग प्रोसेस. इसके अंदर प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से वेरीफाई किया गया है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज: नीड मोर मेमोरी स्पेस. नीड मोर मेमोरी स्पेस मींस कि कंप्यूटर का स्पेसिफिक वर्किंग स्टाइल इतना सिंपल हो गया, प्रोग्रामिंग के कोर्स इतने सिंपल हो गए कि हम लोगों को सिस्टम के लिए नीड मोर मेमोरी स्पेस, हमें कंप्यूटर्स के लिए मेमोरी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी. किसमें? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. वी हैव टू नीड मोर मेमोरी स्पेसेस इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. Yes students, last topic is fifth generation language. Before starting this topic, बच्चों इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. आप में से कुछ बच्चों ने मूवी देखा होगा रोबोट, और एक मूवी का नाम मुझे आई फॉरगेट देयर नेम, ऋतिक रोशन, आई थिंक क्रिश, देयर नेम इज क्रिश. वी हैव टू डिस्कस फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज मीन्स आगे आने वाले टाइम में हम लोग एक टॉपिक आएगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी भविष्य के रोबोट्स, यानी भविष्य के जो कंप्यूटर्स होंगे वो डिपेंड करेंगे फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस को. अभी हम लोग सिर्फ इनके ऊपर रिसर्चेस चल रहे हैं,
अभी उस पर एक रोबोट भी बना, आई फॉरगेट अगेन देयर नेम, एक गर्ल्स की तरह है, गर्ल की तरह। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे। ठीक, 5th जनरेशन लैंग्वेज में आगे आने वाले कंप्यूटर्स पे जो रिसर्च हो रही है, या अभी वर्तमान में जो प्रेजेंटली जो जनरेशन 5th जनरेशन में जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट 3rd point to 2 point and then we have to discuss 1st point. Now 5th generation languages solved a program without program, यानी 5th जनरेशन के अंदर हम लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम विदाउट प्रोग्रामर्स के, हम लोग एल्गोरिथम्स, यानी हम लोग सिंप्लीफाई, हमें प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट कर देंगे। सेकंड थिंग इज दैट पीपल कैन टॉक टू कंप्यूटर्स। माय गॉड, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, यानी बेटा ये चीज कैसे पॉसिबल है। मैंने अभी आपको बताया ना कि वो मूवी रोबोट एंड क्रिश, सेम उसी तरीके से एजेंडा, यानी आगे आने वाले टाइम में पीपल्स कैन टॉक टू कंप्यूटर्स। माय गॉड, पीपल कैन टॉक टू कंप्यूटर्स एंड द वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कन्वर्ट्स स्पोकन साउंड इनटू रिटन कोड्स। यानी बेटा आगे आने वाले समय में हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग कंप्यूटर से बात कर सकेंगे और हमारी लैंग्वेज को वो चेक करके, हमारी भाषा, हमारे साउंड्स को चेक करके, कोड्स को वेरीफाई करके, साउंड्स को वेरीफाई करके वो कोड्स को रिटर्न करेगा, स्पेसिफिक वर्क करेगा। ये दूसरे पॉइंट्स के अंदर ये बोलना चाह रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, 1 पॉइंट इज देयर, नंबर 1 2 3 मींस हम लोगों ने स्टार्ट किया 3 2 1, अब यहाँ हम लोग इसको थर्ड करेंगे। Now it provides visual or graphic interface called a visual programming environment for creating source codes. जिस तरीके से हम लोगों ने GUI पढ़ा था फिर क्लास में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ ग्राफिक्स के साथ में हम लोग विजुअल ऐड कर रहे हैं। विजुअल में देखना और बोलना, विजुअल इफेक्ट्स, विजुअल और ग्राफिक इंटरफेस called a visual programming environment for creating source code। यानी हम लोग इस 5th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में हम लोग यहाँ विजुअल इफेक्ट्स को यूज करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स को सोर्स कोड में डेवलप करेंगे। नाउ एडवांटेजेस ऑफ 5th जनरेशन लैंग्वेज, इट हैव डिसीजन मेकिंग मशीन्स, यानी बच्चों फोर्थ कमिंग टाइम के अंदर, आने वाले समय के अंदर इट हैज डिसीजन मेकिंग मशीन्स, यानी हमें निर्णय लेने में, फास्टली निर्णय लेने में हम लोगों को बहुत ज्यादा ये 5th जनरेशन लैंग्वेज हम लोगों को यूटिलाइज करवाएगी। यूटिलाइज मींस हम लोग 5th जनरेशन के अंदर हम लोग इतने हेल्पिंग नेचर्स तो नहीं बोलूंगा, बट हम लोग इतने ज्यादा क्विक मेकर डिसीजन पर्सन बोलेंगे कि यहाँ हमने बटन प्रेस किया और स्क्रीन के सामने हमारे जो क्यूरी है उसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। Now, disadvantages of this programming language. Programs continue to become more complicated and system is not able to sort it through original algorithm. 5th जनरेशन लैंग्वेज के जो एल्गोरिथम्स हैं या सीक्वेंस ऑफ पार्ट है प्रोग्राम्स के, वो इतने ज्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे कि एक सिंपल पर्सन को समझना, उसको यूज करना या उसको अंडरस्टैंड करना लॉजिकली वो उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहा है प्रोग्राम्स कंटिन्यू टू बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड सिस्टम इज नॉट एबल टू सॉल्व थ्रू ओरिजिनल एल्गोरिथम, यानी सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एल्गोरिथम्स को इतना ज्यादा वर्क लोड उसके ऊपर होगा कि वो अपने ओरिजिनल स्टेटस को यूज किए बिना एक प्रोग्राम्स की मेथोडोलॉजी को सॉल्व नहीं कर पाएगा। नाउ आवर चैप्टर्स, first chapter computer language is complete. I hope all of you guys you have to understand or understood this revision of chapter number 1. If you have any doubt, any query, then you will call me on my personal number. Thank you very much.